Chapter 2 of Civics, Federalism. What is federalism? Any idea? What is federalism? In the previous chapter of power sharing, we have gone through this word. हमने ये word देखा है, federalism. यहाँ पर कौन सा division of power था? Horizontal की vertical? Horizontal की vertical? Vertical division. Vertical form of power sharing had the term federalism. That in a country like India or in other countries, the government at the states, the government at the states is known as federal government. The government at the level of states is known as federal government. So we basically have to study the structure of the government in this entire chapter. What is federalism? Let us get back to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. You would recall that one of the key changes made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and give these powers to the regional governments. देखो हम लोग ने क्या पढ़ा था बेटा, बेल्जियम में क्या हुआ था, पावर्स का रिडक्शन हुआ था, ठीक है। उसमें कैसी एक अकोमोडेशन हुआ था बेल्जियम में, बेल्जियम में कैसा अकोमोडेशन हुआ था, अकोमोडेशन मॉडल इन बेल्जियम, जिसमें कम्युनिटी गवर्नमेंट के भी लीडर्स थे। वहीं पर यहाँ देखो वही लिखा हुआ है वर्टिकल, हाँ इसमें वही बताना है हम लोगों को। सबसे पहले Constitution of Belgium was to reduce the power of the central government and to give to these powers to the regional governments. Point number 1 था ये। अगर आप accommodation देखें, उन्होंने powers जो है central government से लेके state government में दे दिए थे। Regional governments existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. ये भी पॉइंट था उसमें बेटा कि स्टेट गवर्नमेंट या रीजनल गवर्नमेंट को पावर दी जाएगी, लेकिन जब मर्जी होगी सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे वो पावर ले लेगी। हाँ, they had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. The change that took place in 1993 was that the regional government were given constitutional powers that were no longer dependent on the central government. And when the amendment was done, what amendment was done? अब जो भी powers मिलेंगे state government को, वो central government उनसे ले नहीं सकती है। Thus, Belgium shifted from a unitary to a federal form of government. इसका मतलब पहले जो था स्टेट गवर्नमेंट को अगर आप कोई भी पावर देते थे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैड द राइट कि वो पावर वापस ले लेती थी। बट 1993 में उनका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, जिसमें ये हुआ कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को हमने कोई पावर दी तो हम उनसे वापस नहीं ले सकते। ठीक, आगे ये कह रहा है, इसी को कहते हैं जब हम स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट आंसरेबल नहीं होती है, इट कैन नॉट टेक बैक द पावर्स, उसी को हम क्या कहेंगे, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। Sri Lanka continues to be, for all practical purposes, a unitary system where the national government has all the powers. Sri Lanka में सारे powers किसके पास है? एक national government के पास। Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system. Now, what is federal system? In which the state has independent powers and it is not answerable to the central government. Federal system. Federal system means a system in which the state government is not answerable to the central government. Yes, उसके पावर उसके पास नहीं। ये यही चाहता था तमिलनाडु। अब मेन डेफिनेशन है, व्हाट इज फेडरलिज्म? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। अब ये जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होंगी ना बेटा, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट के नीचे लोकल गवर्नमेंट। नाउ दिस विल डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जैसे इंडिया इज अ वेरी बिग कंट्री जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट से काम नहीं चल पाएगा, क्योंकि यहाँ के स्टेट्स ही दूसरी कंट्रीज के बराबर है, आपको पता है, ठीक है ना। यहाँ के स्टेट्स जो हैं इतने बड़े बड़े हैं जो बाहर की कंट्रीज के कंपैरिजन में इक्वल है। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि इंडिया में भी फेडरल गवर्नमेंट होनी चाहिए जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बिल्कुल अलग अलग पैरेलल चले। करेक्ट। यूजुअली अ फेडरेशन हैज टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। वन इज द गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। नाउ अ क्वेश्चन, एक गवर्नमेंट कौन सी हो गई जो पूरे देश को रन करती है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो सारे कौन से इश्यूज? ये आता है क्वेश्चन बेटा, व्हाट आर द इश्यूज दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डील्स विद? लिख लो, व्हाट आर द इश्यूज या व्हाट आर द सब्जेक्ट्स दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट डील्स विद? यस, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल या कॉमन इंटरेस्ट, सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, सब्जेक्ट्स ऑफ common interest, subjects of common interest for the national government। ठीक, मेन गवर्नमेंट के लिए कौन सा सब्जेक्ट है, वो किस पे डिसीजंस लेगी?
वो इश्यूज होंगे जो सबके इंटरेस्ट के लिए होंगे. The others are government at the level of provinces or states that look after much of the day-to-day administering of their states. अब state government क्या करती है बेटा? What is the function of state government? They look at the day-to-day administering of their state. So the role of central government and the role of state government. Central government has to look after all the matters of common interest for the country, right? Common interest मतलब central government वहां interfere करेगी जहां पूरे देश की बात आएगी. ठीक है, जैसे अभी कोविड आया, COVID-19 was a national issue, right? All over India, pan India. तो उसमें जो decision making authority थी वो किसके पास थी? Central government. And if I'm talking about states, जैसे केरला में फ्लड आते हैं, ठीक है, किसी स्टेट पर्टिकुलर स्टेट को किसी एक डेंजर में अटैक किया, तो वहां पर स्टेट गवर्नमेंट का जो हेड है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग ऑल द डिसीजंस इंस्टेड ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जो नेशनल इंटरेस्ट के मैटर होंगे दैट विल बी टेकन केयर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द मैटर्स ऑफ डे टू डे related to the states would be taken care by the respective states. ठीक? Both these levels of government enjoy their power independent of the other. Like एक state दूसरे पे dependent नहीं है, दोनों लोग एक दूसरे पे अलग अलग से हैं. In this sense, federations are contrasted with unitary governments. अब difference देखो, write the question difference between unitary and federal government. Difference between unitary and federal government. Question number 2. पहला क्वेश्चन था आपका subjects taken care by national government. दूसरा क्वेश्चन है difference between the unitary and the federal government. ठीक है, unitary और federal government में सबसे पहले under the unitary system either there is only one level of government. Unitary means one. So under the unitary system, either there is only one level of government or the sub-units are subordinate to the central government. Subordinate का मतलब क्या हुआ बेटा? उसके अंडर. तो decision making किसके पास होगी? Central के पास. Decision making एक ही के पास रहेगी. जैसे यहाँ पर ये गवर्नमेंट है आपकी, गवर्नमेंट है, करेक्ट? इसने कंट्री बहुत बड़ी है पर एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इसने अपने नीचे सारे क्या बना दिए? सबऑर्डिनेट्स. बट डिसीजन मेकिंग किसके पास रहेगी? सिर्फ एक के पास. ये होती है हमारी यूनिटरी गवर्नमेंट, करेक्ट? The central government can pass on orders to the provincial or to the local government. ये difference number 2. This is difference number 1 and this is difference number 2. Unitary system, correct? And federal government. Unitary government का बता रहे हैं हम लोग, ठीक है? हाँ, difference between unitary and federal government. And the second difference is, but in a federal system, the central government cannot order the state government to do something. State government has power of its own for which it is not answerable to the central government. So difference number 1, in a federal government, the central government cannot order the state government. And the second difference, second वाले का ये मतलब हुआ बेटा कि central government अपना अलग काम करेगी independently और state government अपना अलग काम करेगी federal में. State government कोई भी decision लेगी उसके लिए वो answerable नहीं रहेगी central government को. Correct? क्योंकि वो उसके स्टेट का मैटर है. It is independent to take all the decisions. This is point number 2. ठीक? The difference between the unitary and the federal government. यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? बेटा ये है डिफरेंस बताया गया है यूनिटरी और फेडरल गवर्नमेंट के बीच में. जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो वहां पर सिर्फ एक ही सरकार है मेन टॉप पे, उसके नीचे जितने भी हैं वो उसके सबऑर्डिनेट है. सबऑर्डिनेट मतलब उसके अंडर काम कर रहे हैं, उसके डिसीजंस फॉलो कर रहे हैं. दे कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, करेक्ट? और यहाँ पे ये 3 इसको आंसरेबल भी है, यहाँ पे ये 3 इसको आंसरेबल भी है. बट अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की बात करें तो फेडरल गवर्नमेंट में ये तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, ठीक है? इसके अंडर जो स्टेट गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन दिस इज नॉट आंसरेबल टू दिस. ये दोनों इंडिपेंडेंटली काम करती है. क्लियर? तो यूनिटरी गवर्नमेंट में, यूनिटरी मींस वन, एक ही गवर्नमेंट है जिसके अंडर सारे सबऑर्डिनेट्स काम कर रहे हैं, और फेडरल गवर्नमेंट में दे आर आंसरेबल. क्लियर? दो डिफरेंस. नाउ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म. I shall read the पहला फीचर. Let us look at some of the key features of federalism. There are two or more models, 2 or more levels or tiers of the government. See, I told you this depends upon the country. अगर country बहुत बड़ी होगी तो हो सकता है 2 से ज्यादा भी हो. जैसे इंडिया में we have central government, state government and village government, local government. ठीक है? तो ये country के ऊपर डिपेंड करेगा. अगर country ज्यादा बड़ी नहीं है तो 2 गवर्नमेंट से भी मैनेज हो सकता है, लेकिन अगर country बहुत बड़ी है तो we need more.
Next. Different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, and administration. Read this jurisdiction. The area over which someone has legal authority, the area may be defined in the terms of geographical boundaries or in the terms of certain kind of kinds of subjects. subjects. For example, जैसे जोग्राफिकली हमने एरिया को डिवाइड कर दिया, हमने बोला पूरा उत्तर प्रदेश एक रीजन में आता है और यहाँ का ज्यूरिसडिक्शन जो है यहाँ के लॉ के हिसाब से काम करेगा, करेक्ट। और दूसरा इन्होंने भी बोला है सर्टेन काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स, जैसे मैटर्स रिलेटेड टू डाउरी, दिस कैन बी अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, या मैटर्स रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, ये एक पर्टिकुलर हमने गवर्नमेंट को दे दिया। तो सेकंड फीचर का ये मतलब हुआ बेटा कि गवर्नमेंट वही है जो सारे सिटीजंस को गवर्न कर रही है, लेकिन उनका दायरा कहाँ तक है, उनके ज्यूरिसडिक्शन लेवल तक, मतलब जिनका जितना उनके पास डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो उतनी ही डिसीजंस ले सकते हैं, जितना है वो बेस्ट। इसमें लिखा है ना, देखो। और ये कैसे बांटे जाते हैं, ये बांटे जाते हैं एरिया के हिसाब से, जैसे यूपी की गवर्नमेंट कैन टेक डिसीजंस ओनली विद इन द बाउंड्रीज ऑफ उत्तर प्रदेश, करेक्ट। और सब्जेक्ट मैटर्स, सब्जेक्ट मैटर कुड बी एनीथिंग, आई टोल्ड यू कि जैसे हमने डाउरी का इशू लिया, कि डाउरी का इशू कौन सी गवर्नमेंट सॉल्व करती है, सीधे वहां पर केस गया, ठीक है। तो ये है सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, The jurisdiction of the respective levels or tiers of government are specified in the constitution, so the existence and authority of each tier government is constitutionally guaranteed. So this means जिसके भी जितने jurisdiction है, जिसके जो भी दायरे हैं लीगली, ठीक है ना, वो सारे मेंशन्ड है कहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हर किसी को जो भी उनकी लिमिट्स है, दे आर ऑल मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड दे हैव टू परफॉर्म अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट, The fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of the government. Such changes require the consent of both levels of the government. Any change in any kind of law, any kind of constitution, it requires approval of both the government. It cannot be changed unilaterally, मतलब single government. Uni means single. कोई भी सिंगल गवर्नमेंट कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी लॉ चेंज नहीं कर सकती है। अगर आपको कुछ भी चेंज करना है तो दोनों स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की कंसेंट मैंडेटरी है, ठीक। इसमें ये है बेटा, देखो कह रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, सपोज करो हमको कुछ चेंज करना है, करेक्ट, हमको एज लिमिट चेंज करनी थी, पहले वोटिंग की एज लिमिट थी 18, now we have to make it to 21. So this change cannot be done until and unless both the state government and the central government give their consent. अगर स्टेट गवर्नमेंट कहती है चेंज करो बट सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं कह रही है तो चेंज नहीं होगा। किससे दे रहा है? हाँ, किससे दे रहा है कंसेंट? दोनों का। सच चेंजेस किसको दे रहा है? ये हम लोग को एज लिमिट जो है वोटिंग की बढ़ानी है, कम करनी है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंज लिखना है हम लोगों को। वी हैव टू चेंज दिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। एक लॉ है जो पहले कहता था कि 18 साल तक हमको ये करना है, अब हम कह रहे हैं कि नहीं, वोटिंग की एज जो है 21 तक करनी चाहिए। सो ये चेंज अगर हमको कॉन्स्टिट्यूशन में करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पहले दोनों का कंसेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। इंटरप्रेट मींस अंडरस्टैंड। इंटरप्रेट मींस अंडरस्टैंड। The court has the power to interpret the constitution and the powers of the different levels of the government. The highest court acts as an umpire if the disputes arise between different levels of the government in the exercise of their respective powers. Correct. कोर्ट्स के पास ही अथॉरिटी है कि अगर कहीं पे भी कोई इशू हो रहा है, if there is some kind of misunderstanding, so in that case the highest court, which is the highest court, Supreme Court or the High Court? Supreme Court. Supreme Court has the authority to solve all the disputes, right? अगर कोई भी मनमुटाव होता है किसमें, पावर्स को समझने में, तो कॉन्स्टिट्यूशन के पास अथॉरिटी है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला माने। नेक्स्ट, sources of revenue for each level of the government are clearly specified to ensure its financial autonomy. Autonomy means freedom. Autonomy is freedom. This means कि जो भी रेवेन्यू के सोर्सेज हैं, what are the sources of revenue for the government? Taxes. सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है बेटा? Taxes, grants, ठीक है ना, ये सब। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो गवर्नमेंट को सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू है, ईच गवर्नमेंट इज फ्री टू डिसाइड कि उसको वो पैसा कहाँ खर्च करना है। देखो लिखा है, हाँ बेटा, स्टेट गवर्नमेंट नहीं मानी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। यस यस। और लास्ट पॉइंट ये कह रहा है जो भी सोर्सेज है रेवेन्यू के हर एक लेवल के, वो स्टेट ही डिसाइड करेगी कि हमको पैसा कैसे कलेक्ट करना है और उसकी फ्रीडम की कैसा उसको पैसा डिप्लॉय करना है, कहाँ कहाँ डिप्लॉय करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है, कंस्ट्रक्शन में लगाना है, अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने में लगाना है, पॉवर्टी इरेडिकेट करने में लगाना है। दैट डिपेंड्स अपॉन द स्टेट। जो भी उसका डिसीजन है वो खुद ही देगा। ये है कि वो फ्री है, जो भी रीजन, स्टेट हो तो स्टेट, सेंट्रल है तो सेंट्रल, जैसे भी वो पैसा कलेक्ट करे, या कोई भी सोर्स हो सकता है, और कहीं पे भी वो फाइनेंशियली फ्री है टू डिप्लॉय इट्स रिसोर्सेज। नेक्स्ट, The federal system thus has dual objectives. Number one,
number one, to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity. पहला ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टू सेफगार्ड एंड प्रमोट यूनिटी ऑफ द Unity of the कंट्री। country. पहला पहला इसका ऑब्जेक्टिव हो गया सेफगार्ड करना, कंट्री को सेफगार्ड करना और कंट्री को यूनाइट करके रखना है। तभी तो उसने हाँ नहीं तभी तो उसने गवर्नमेंट स्टेट पे भी बनाई है, सेंट्रल पे भी बनाई है, क्योंकि कंट्री बहुत बड़ी है, कंट्री बहुत बड़ी है। और फेडरल सिस्टम में हमने क्या बोला? स्टेट गवर्नमेंट डिसीजंस खुद ले सकती है एंड इट इज नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनिटरी में ऐसा थोड़ी ना होता है, यूनिटरी गवर्नमेंट में होता है एक ही गवर्नमेंट फैसला लेती है और दूसरी उसको आंसरेबल होती है। इसीलिए तो हमने फेडरल गवर्नमेंट बनाया है ताकि हम कंट्री को प्रमोट भी कर सके और यूनिटी भी बना के रख सके। और दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? while at the same time accommodate regional diversity. What is regional diversity? Regional diversity is differences in religions. What is regional diversity? Differences in religions. For example, people living in Uttar Pradesh, people living in Jammu Kashmir, people living in Assam, and people living in Gujarat. Do they have the same religion, same lifestyle to follow? No. तो यही ऑब्जेक्टिव होता है हमारा फेडरल गवर्नमेंट रखने का कि हम सबको एक साथ लेके चले और जितने भी रीजनल इम्बैलेंसेस हैं, जितने भी रीजनल डाइवर्सिटीज हैं, हम उनको दुनिया में मिटाएं, सो दैट जब नॉर्थ का बंदा यहाँ पर आ रहा है, ईस्ट जा रहा है या वेस्ट जा रहा है, ही फील्स कंफर्टेबल, राइट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है फेडरलिज्म का कि हमको क्या करना है? अकोमोडेट करना है, उसको एडजस्ट करना है रीजनल डिफरेंसेस को। देखो हमने आपको बताया बेटा हर एक स्टेट में अलग अलग रिलीजन चलता है, तो फेडरलिज्म का क्या रोल है कि उन रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करके हम ऐसे गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट ना करें, ऐसे गवर्नमेंट रन करें कि रीजनल डिफरेंसेस ना आए, रीजनल डिफरेंसेस ना आए। ठीक, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रूल्स फॉर द वेस्ट एंड फॉर द ईस्ट दे आर वेरी डिफरेंट इन द सेम कंट्री, राइट। हमको वो पैरेलल रन करके रीजनल डिफरेंसेस को कम करना है, ठीक है ना। Therefore, two aspects are Two crucial aspects are crucial for the institution and the practice of the federalism. Governments at different levels should agree to some rules of power sharing. They should also trust that each should abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. underline the best federal system is mutual trust and agreement to live together. जब तक ट्रस्ट नहीं होगा दो गवर्नमेंट्स के बीच में, वो रन ही नहीं कर सकती है फेडरल, ठीक है ना। क्योंकि हमने क्या बोला? both are independent, so the central government should have full trust and faith कि जो स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है वो ठीक कर रहा है, करेक्ट। एंड अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, हम दोनों साथ में काम कर पाएंगे, ट्रस्ट इशू ना हो पहला, और दूसरा कि वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। अगर फॉर एग्जांपल कोई मुंबई की गवर्नमेंट है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो नई चीज हैंडल कर पा रही है, तो उसको स्टेट मोदी जी को खबर करनी पड़ेगी ना कि ये इशू हो रहा है, तो अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, करेक्ट। ट्रस्ट भी होना चाहिए और साथ में काम करना चाहिए। तो ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म पे एक क्वेश्चन पक्का आता है, डिफाइन फेडरलिज्म एंड गिव इट्स फीचर्स। ये 6 के 6 आपको लर्न करने हैं बेटा, 7 सारे आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन बना लो, डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर। देखो ये लास्ट ये पेज कर लो क्योंकि बहुत क्वेश्चंस इतने में बन गए। डिफरेंस बिटवीन, फेडरलिज्म वाला क्वेश्चन लिख लो, डिफाइन फेडरलिज्म एंड गिव इट्स फीचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशंस एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस। डिफरेंस बिटवीन कमिंग टुगेदर फेडरेशंस एंड holding together federations. All right. Difference between coming together federations and holding together federations. सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ना, ये कॉमन नेशनल, ये आगे भी हम और डिटेल में पढ़ेंगे, उसके ऊपर है पूरा व्हाट आर द सब्जेक्ट्स, ये पूरा है ना, कॉन्करेंट लिस्ट, करंट लिस्ट, कॉन्करेंट हटा दीजिए, नहीं लिस्ट नहीं, नेक्स्ट कंटिन्यू बेटा। The exact balance of power between central and the state government varies from one federation to another. This balance depends mainly on the historical context in which the federation was
federations formed. There are two kinds of routes through which federations have been formed. The first route involves independent states coming together on their own to form the bigger unit, so that by pooling sovereignty And sorry. sovereignty and Retaining retaining identity, they can increase their security. This type of coming together federations include the USA, Switzerland, and Australia. In the first category of federations, all the constitutions state usually have equal power and a strong vis-a-vis. vis-a-vis the federal government. This means coming together federations ये कहता है बेटा कि इसमें nations अपने आप इकट्ठा होना चाहते हैं. They come together so that they pool their sovereignty and will retain their identity and they can increase their security. मतलब Sovereignty इंडिया का क्या जैसे support दे. हाँ, मतलब एक साथ मिल के हम रहना चाहते हैं. That is called coming together federations. हम क्या कह रहे हैं? हम ताकि हम अपनी security बढ़ा लें. Country A, country B, country C इकट्ठे हो गए तीनों. क्यों अच्छा, इकट्ठे हो गए? जैसे ताकि यूक्रेन वाले हैं, yes, ये जो जैसे उसका NATO बना support हुआ आ था गया, agreement, हाँ. support आ जाता है. तो उसको कहते हैं कि ये coming together federations होते हैं ये. The first The first route involves independent states coming together on their own to form a bigger unit, so that by pooling sovereignty and retaining identity, they can increase their security. This is known as coming together federations, and the examples are USA, Switzerland, and Australia. मम्मी मिलता है Vis-a-vis, they form a very strong federal government. That is, they form a very strong federal government. आगे देखो पढ़ो क्या? They have equal power. अब ये चीज सबसे important है. दूसरा difference क्या हो गया बेटा? All these countries have equal powers. ये नहीं होगा कि USA के पास ज्यादा powers होंगे, Switzerland के पास. All these have equal powers. The second route, The second route is where a large country decides to divide its power between constituent states and national government. India, Spain, and Belgium are examples of this kind of holding together federations. In the second category, the central government tends to be more powerful vis-a-vis the states. Very often, different constituent units of the federation have unequal powers. Some units are granted special powers. now what do you mean by this beta? In this, there is the division of power. There is division of power between the states and the central government. There is division of power. यहाँ पर ये लोग एक साथ काम नहीं करना चाहते हैं. जैसे हमने आपको बताया, यहाँ पर आपकी कंट्री जो है, यहाँ पर आप ऊपर इसके कमिंग टुगेदर के एग्जांपल क्या थे? यूएसए. यूएसए में जितनी भी कंट्रीज हैं, वो सब साथ में मिलके काम कर रही हैं. करेक्ट. लेकिन यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? होल्डिंग टुगेदर में साथ में मिलके काम नहीं करना चाहती. पावर का डिवीजन हो रहा है. जैसे इंडिया में हमने आपको बताया सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग काम कर रही है. दिस इज होल्डिंग टुगेदर. यूएसए में जितनी भी अंदर कंट्रीज होंगी वो सब इकट्ठे काम कर रही है. दिस इज बेसिक डिफरेंस. ठीक है, देखो लिखा भी हुआ है. The second route is where a large country decides to divide its power between the constituent states and the national government. State government और national government में division of power है. India, Spain, and Belgium are these kinds of examples. In this second category, the central government tends to be more powerful as compared to the state governments. As compared to the क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे क्योंकि डिवीजन ऑफ पावर है, तो सेंट्रल को ज्यादा पावर नेचुरली होगा क्योंकि वो टॉप मोस्ट गवर्नमेंट है. Very often, different constituent units of the federation have unequal powers. Some units are granted special powers. Some units are granted मतलब कुछ states हैं जिनको एक special powers दिए जाते हैं. बता सकते हो कौन से states को special power मिलते हैं? Example, इंडिया में. इंडिया दिल्ली. जैसे इस समय केरला को मिल रहा है एक्स्ट्रा. क्यों? क्योंकि वो फ्लड से हिट हुआ था, तो उनको एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिल रही हैं. उनको सिक्योरिटी दी जा रही है, उनको फंड्स दिए जा रहे हैं काफी सारे, ताकि वो अपनी ओरिजिनल आइडेंटिटी रिटेन कर पाए, वापस उस स्टेज पे नॉर्मल आ पाए. क्योंकि कह रहे हैं उसको बहुत डिस्ट्रक्शन किया था, ज्यादा करा जा रहा है, कह सकते हैं, क्योंकि ये मेट्रो वो है कैपिटल सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश. तो समझ में आ गया आपको कमिंग टुगेदर और होल्डिंग टुगेदर? कमिंग टुगेदर इज बेसिकली जहां पर हम पावर्स क्या करते हैं, एक साथ हम लेके चलते हैं, सो दैट वी रिटेन आवर आइडेंटिटी आल्सो, और सिक्योरिटी बढ़ता है. लेकिन होल्डिंग टुगेदर में हम लोग डिवीजन ऑफ पावर्स कर लेते हैं बिटवीन द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट. दूसरा डिफरेंस एग्जांपल उसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड, और इसका एग्जांपल है इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम. बेल्जियम में भी हमने देखा था ना, कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग बन गई थी, उन्होंने अपने अपने लीडर्स चूज कर लिए थे. ठीक है, ज्यूरिसडिक्शन की डेफिनेशन भी आपको लर्न करनी है.